ہم 8 بہنیں تھیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ہمارا بہت لاڈلا تھا۔ ہم سب بہنیں اس کو بہت پیار کرتی تھیں۔ ایک دن اچانک ہمارا بھائی اغوا ہو گیا۔ ہمارے گھر قیامت کا منظر تھا۔ امی کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر ابو کا ٹرانسفر ہو گیا اور ہم وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ جس گھر میں شادی ہوئی وہاں ایک بہت حسین لڑکا تھا جو میرے شوہر کے چچا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کو میری سب سے چھوٹی بہن پسند آ گئی۔ کہنے لگا شادی اسی سے کروں گا۔ لیکن جب اس لڑکے کے جسم پر وہ نشان دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں اسے دیکھ کر متذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی نین نقش، وہی رنگ روپ۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کا نقشہ گھوم گیا تھا۔ میرے سامنے اس وقت میرے شوہر کے چچا کا بیٹا بیٹھا تھا۔ ان کی فیملی ابھی سعودیہ سے واپس آئی تھی۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے، لیکن میری نظریں صرف اسی پر ٹکی ہوئی تھیں کہ اچانک آپا مجھے ڈھونڈ لو، میں کہاں ہوں؟ 7 سالہ ارسلان کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہم 8 بہنیں تھیں اور ارسلان ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو ہم 7 بہنوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ ارسلان سے چھوٹی بہن ایک بہن شفق تھی اور جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ بہنوں میں میرا نمبر 5واں تھا۔ ہم سب بہنوں نے اپنے بھائی کے سارے لاڈ اٹھائے تھے۔ ہر وقت ہم ارسلان کے ناز نخرے اٹھاتی رہتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں ہماری خوشیوں کو نظر کھا گئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ارسلان 7 سال کا تھا۔ وہ باہر گلی میں کھیلنے چلا جاتا اور جب گھر لوٹتا تو خوب مٹی سے بھرا ہوتا۔ میں اسے نہلا دہلا کر صاف کپڑے پہنا دیتی۔ بڑی بہن اسے کھانا کھلاتی اور میری ماں کی تو جان بستی تھی میرے بھائی میں۔ سرے شام وہ روز میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا تھا اور مجھ سے کہتا آپا مجھے ڈھونڈ لو۔ میں اسے ڈھونڈتی رہ جاتی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملتا تھا۔ پھر جب میں تھک ہار کر بیٹھ جاتی تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا آپا میں آ گیا۔ اس کے معصوم خوبصورت چہرے پر مجھے جی بھر کر پیار آتا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گلے لگا کر بھینچ لیتی۔ آپا ایک گلاس پانی ملے گا؟ سامنے بیٹھے میرے شوہر کے چچا کے بیٹے نے مجھ سے پانی مانگنے کے لیے آپا ہی کہا۔ مجھے لگا میرا 7 سالہ بھائی میرے سامنے آ گیا ہو۔ میں اس 22 سالہ نوجوان کو دیکھ کر کبھی شک نہ کرتی، لیکن جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، جبکہ میرے سسرال اپنی سانولی رنگت کے لیے مشہور تھے۔ میری ساس سسر، چچا سسر، چچی ساس، سب کی رنگت گندمی تھی۔ یہاں تک کہ میرے شوہر اور میرے دونوں دیور بھی گندمی رنگت کے مالک تھے، لیکن ان کے چچا کا بیٹا تو دیکھنے میں بالکل پٹھان لگتا تھا۔ کوئی دیکھے تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان چچا کا بیٹا ہے۔ میرے شوہر کا جب میرے لیے رشتہ آیا تو میری بہنوں کو بس ان سب کی رنگت پر اعتراض تھا، کیونکہ ہم سب بہنیں گوری رنگت اور خوبصورت نکوش کی مالک تھیں، لیکن ابرار پڑھے لکھے اور اچھی پوسٹ پر فائز تھے۔ بے شک رنگ گندمی تھا لیکن جاذب نظر تھے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ عادات کے بھی بہت اچھے تھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اگر انسان کے اوصاف اچھے ہوں تو رنگت کو کیا دیکھنا۔ میں بہت خوش تھی ان کے ساتھ۔ یہ بات ہماری ماں نے ہی ہمیں بچپن سے ذہن نشین کروائی تھی۔ میں اس نوجوان کے لیے پانی لینے کچن میں جانے لگی، لیکن میرے قدم اس وقت تھم سے گئے جب چچی نے اپنے بیٹے کو ارسلان کہہ کر پکارا۔ کہنے لگی ارسلان بیٹا پہلے نہا دھو کر فریش تو ہو جاؤ، پھر باتیں کرتے رہنا۔ میں اس نوجوان کا نام سنتے ہی برجستہ پلٹی تھی۔ ارسلان میرے بھائی کا نام بھی تھا، جو اگر ہمارے پاس ہوتا تو بالکل ایسا ہی دکھتا۔ 15 سال پہلے ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب ایک دن ارسلان گلی میں کھیلنے گیا تو لوٹ کر ہی واپس نہ آیا۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی تو میں اور میری بڑی بہن اسے ڈھونڈنے باہر گلی میں چلے گئے، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے گلی میں کھیلتے بچوں سے پوچھا کہ ارسلان کہاں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں، ایک عورت آئی تھی ارسلان کو کہنے لگی میرے ساتھ چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی، اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔
हम तो ये सुनकर ही परेशान हो गए थे। मेरी माँ ने मोहल्ले का कोई घर ना छोड़ा, लेकिन अरसलान कहीं नहीं मिला। अब्बा ने पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन फिर भी कोई हल ना निकला। मेरी माँ तो शुरू में अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठी थी। अरसलान को पुकारते हुए बाहर गली में निकल जाती, अरसलान की उम्र के बच्चों को पकड़ पकड़ कर चूमने लगती, कहती तुम ही मेरे अरसलान हो। उन्हें गले से लगाए कहने लगती। अपनी माँ की हालत देखकर हम रोने लगते। मुझे भी यही लगता था कि अरसलान कहीं घर छुपा हुआ है, अभी कुछ देर बाद मेरे सामने आएगा और कहेगा कि आपा मैं आ गया। लेकिन ये आरज़ू मेरी कभी पूरी ना हो सकी। अम्मी की बिगड़ती हालत के पेश नज़र मेरे वालिद हमें कराची ले आए। अरसलान का गम सबके दिलों में कभी भी पुराना नहीं हो सका था। हम हर साल उसका तस्वर बांधे कि अब वो इतने साल का हो चुका होगा, अब वो ऐसा दिखता होगा। मुझे तो लगता था कि वो एक दिन दरवाज़ा बजाएगा और जब मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो मेरा भाई मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा आपा देखो मैं आ गया। कई आंसू मेरी आंखों से गिरे थे। मैं किचन में खड़ी थी, बाहर किसी बात पर सबके कह कहे बुलंद हो रहे थे और मैं माजी से हाल में निकल आई। मैंने पानी उस नौजवान को दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना पकाते हुए भी मेरे जहन पर वही एक लड़का सवार था जो मेरे सिले जख्मों को आपा कहकर उधेड़ गया था। मुझे अपने भाई की याद नए सिरे से आने लगी थी। जब भी बाहर खेल कर आता मेरे गले में बाहें डाल देता, आपा बिरयानी बनाओ ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं एक डिश में बिरयानी डालते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती थी। खाने के दौरान भी मेरी नज़रें उसी नौजवान का तवाफ करती रहीं। मेरा भाई अरसलान भी आज होता तो 22 साल का ही होता जितना कि ये है। आपा आपने बिरयानी बहुत मज़े की बनाई है। मैं जितना बिरयानी का शौकीन हूँ, अम्मी को बिल्कुल भी नहीं बनानी आती। उसका खाने का अंदाज तक अरसलान जैसा था। खाते हुए वो मुसलसल बोले जा रहा था। मैं दीवाना वार उसे देख रही थी, अपने अंदर कहीं भाई को बरसों से ना देखने की हसरत को पूरा कर रही थी। आंखें तशनगी से नवाज रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कह दे कि आपा मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं उसे सीने से लगा लूँ, उसका माथा चूमूं, रात भर बैठकर उसे बातें करूँ। हमारे तो ठीक से शौक भी पूरे नहीं हुए थे। एक नामालूम औरत हमारा भाई हमसे छीन कर ले गई थी। जब भी हमारा दिल दुखता हम जी भर कर उस औरत को बद्दुआएं देते थे। कैसे जी चाहता है किसी के जिगर का गोशा चुरा के ले जाओ। लोग क्यों नहीं सोचते कि उनके घर वालों पर क्या क़यामत टूटती है। मुझे याद आने लगा कि जब हम कराची में शिफ्ट हुए थे, अम्मा काफ़ी बहल गई थी, जान गई थी कि अब हमें अरसलान कभी नहीं मिल सकता, लेकिन चुप चुप रहने लगी थी। हर वक्त उनकी आंखें नम रहती थीं। हमने उसके बाद अपनी माँ को कभी मुस्कुराते देखा ही नहीं था, ना ही बात करते देखा। बड़ी आपा की शादी के बाद जब आपा के घर बेटा हुआ तो अम्मा की खुशी काबिले दीद थी। कहने लगी मेरा अरसलान वापस आ गया है। वो आपा के बेटे को बेतहाशा प्यार करती थी। अजीब इत्तेफाक ये था कि हम दोनों बहनों के घर बेटे ही हुए थे। मेरी शादी को 3 साल बीत गए थे और मेरा भी 1 साल का बेटा था। हम सब बहनों की शादियां हो चुकी थी, बस सबसे छोटी बहन शफक ही रहती थी। एक बार मेरे बेटे को बुखार हो गया। मेरे शौहर अभी काम से वापस नहीं लौटे थे और घर पर अरसलान के अलावा कोई दूसरा मर्द भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर का क्लिनिक भी काफ़ी फासले पर था। जब मैंने अपनी सास से कहा मुन्ने को बहुत तेज़ बुखार है, मुझे उसे लेकर डॉक्टर पर जाना है, मेरी सास ने अरसलान से कह दिया कि वो मुझे अपने साथ ले जाए। मैं उसके साथ अपने बेटे को डॉक्टर पर ले गई। वो डॉक्टर मेरी ससुराल की फैमिली डॉक्टर थी, हम सबको जानती थी। पहली बार मेरे साथ अरसलान को देखकर मुस्कुराकर कहने लगी कि आपके भाई की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। ये सुनकर मेरी नज़रें बेसाख्ता अरसलान के चेहरे पर जा टिकी थीं। वो भी मुस्कुरा रहा था। कहने लगा जी हाँ, अब हम भाई बहन ही हैं तो शक्ल तो मिलेगी ही। उसने शायद ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मेरा दिल तो इस बात की गवाही दे रहा था, तुम ही मेरे भाई हो। वापसी पर भी वो मुझे हंसते हुए यही कहता रहा कि आपा आप भी मेरी तरह खूबसूरत हैं, इसीलिए सबको देखकर धोखा सा लगने लगा है कि हम भाई बहन हैं। खैर आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी ही हैं। वो काफ़ी बातूनी किस्म का था, बहुत जल्द घुलने मिलने वाला। उसका ज़्यादातर वक्त मेरे देवरों के साथ ही गुजरता था।
एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अरसलान को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में गई तो वो शायद नहा कर निकला था। पैंट शर्ट पहने तैयार था, लेकिन शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसकी गर्दन के पास स्याह निशान देखकर तो मेरे होश से उड़ गए थे। मुझे होश तक नहीं था कि मेरा उसके कमरे में इस वक्त मौजूद होना मायूब सी बात है। मुझे देखकर वो कुछ सटपटा गया था। मैं उसके पास आई तो वो बुरी तरह से घबरा गया। हालांकि मैं यूं कभी अपने देवरों के कमरे में भी नहीं जाती थी, लेकिन अरसलान मेरे लिए कुछ और ही दर्जा रखता था। उसके वजूद में मैं अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रही थी। कहने लगा, आपा आप जाएं, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मुझे इस बात की परवाह तक नहीं थी कि वो मुझसे क्या कह रहा है। मैंने कहा, तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है, क्या चोट लगी थी? कहने लगा, नहीं, ये तो शुरू से ही है, शायद पैदाइशी हो, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे बहते हुए आंसू देखकर वो कुछ मुतहैयर सा हुआ था। मैंने कहा, मेरा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता, अगर वो बचपन में गुम ना हुआ होता। माफ करना, लेकिन मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरा भाई याद आने लगता है। उसकी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान था, इसलिए जब तुम्हारी गर्दन पर भी वैसा ही निशान देखा तो बेख्तियार यूं बिना इजाजत तुम्हारे कमरे में आ गई। मेरी वजाहत सुनकर वो गहरी सांस भरकर बोला, अल्लाह आपको सब्र दे, मुझे आप अपना छोटा भाई ही समझें कि अल्लाह ने आपको आपका भाई लौटा दिया है। मेरे सर पर बड़ी अपनायत और मोहब्बत से उसने किसी भाई की तरह हाथ रखकर कहा। फिर वो मेरा और भी ख्याल रखने लगा। मुझे अब वो आपा कहता उसका मुंह नहीं थकता था। मेरे शौहर और देवरों के सामने भी यही कहने लगा कि मैं आपा का, सभी उसकी बात की तायीद करते थे। वक्त यूं ही गुजर रहा था जब एक दिन मैंने कुछ सुन लिया जो मेरे पांव तले जमीन निकाल गया। एक बार अपनी सास के कमरे में मैं उन्हें चाय देने गई तो वो चची से कह रही थी, रफाकत, अरसलान तुम्हारा सगा बेटा बिल्कुल नहीं लगता। जवाब में चची हंसकर कहने लगी, भाभी, मेरे घर औलाद जो नहीं थी और मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश भी थी, इसीलिए मैंने तो अरसलान को अगवा किया था। बस हो गई आपकी तसल्ली? हर वक्त मुझे आप यही सुनाती रहती हैं। ये सुनकर तो मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया और गिरते ही छनाक से टूट गया। ये सुनकर ही मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मेरी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूमने लगा जब मुझे किसी बच्चे ने ये कहा था अरसलान को एक औरत अपने साथ लेकर गई थी। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं फिर से उम्मीद से हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दिया। मुझे औलाद की भी खुशी उस वक्त नहीं थी। मेरा जहन तो अपनी चची सास की बात पर अटका हुआ था। मुझे लगा मेरे अंदर सिले हुए सारे जख्म फिर से उधड़ गए हैं। मेरा भाई कल ही अगवा हुआ हो। मेरा हर जख्म ताज़ा हो गया। दर्द की टीसें फिर से उठने लगी थीं। अगर ये बात चची ने मजाक में भी कही थी तो मेरी जगह कोई भी सुनता तो सच ही मान लेता और मैंने सचमुच अपना भाई खोया था। फिर उसकी गर्दन पर वो स्याह निशान भी अरसलान की गर्दन जैसा था। दिन ब दिन मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मेरी गिरी गिरी तबीयत देखकर मेरे शौहर ने मुझसे ये कहा कि मैं शफ़क़ को चंद दिनों के लिए अपने पास बुला लूँ। वो कहने लगे कि अगर चचा चची ना आए होते तो वो मुझे मैके भेज देते, लेकिन मेहमान के होते हुए मेरा मैके जाना गैर मुनासिब सा है। फिर मैं खुद भी जाना नहीं चाहती थी। अरसलान की सूरत में मुझे मेरा भाई नज़र आता था। मैंने शफ़क़ को अपने पास बुला लिया। अब मेरी काफ़ी जिम्मेदारी कम हो गई थी। शफ़क़ हम सब बहनों की हुस्न का निचोड़ थी, सबसे ज़्यादा हसीन थी। कोई एक बार भी उसे देख लेता तो नज़रें चुराना भूल जाता। कई बार मुझसे मेरी सास ने शफ़क़ के लिए मेरे देवर के दबे लफ्ज़ों में बात की थी, लेकिन शफ़क़ कुछ हुस्न परस्त लड़की थी। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि अपिया, मैं शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगी जो मेरी तरह खूबसूरत हो। शफ़क़ मेरा ख्याल भी रखती थी और किचन भी संभालती थी। एक बार मैं लाउंज में बैठी थी, अरसलान भी वहीं टीवी देख रहा था। जब मैंने उसे तन्हा पाकर कुरेद न चाहा। 7 साल से पहले की कोई बात उसे याद तो होगी, उसी से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन है। मैंने कहा, अरसलान, तुम्हें बचपन में क्या खेलना पसंद था? कहने लगा, छुपन छुपाई। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मेरे भाई को ये खेल पसंद था। मैंने कहा, तुम्हें दुख तो होता होगा, तुम बचपन से अकेले हो, कोई तुम्हारा दूसरा भाई बहन नहीं है, बचपन में तुम अकेले ही खेलते होगे, तब तो बुरा लगता होगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा,
मुझे 7 साल से पहले का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि अम्मी बताती हैं कि मैं छत से गिर गया था। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मुझे अपना बचपन सब भूल गया। मैं तो अपनी अम्मी अब्बू को भी नहीं पहचानता था। मुझे लगता था कि मैं गैरों के बीच में रहता हूँ। अरसलान की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे, और दूसरे होश मेरे ये बात सुनकर उड़े कि जब मेरी सास ने ये बताया कि मेरी सास और उनकी देवरानी की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन 5 साल तक देवर के घर में कोई औलाद ना हुई और मेरी सास के 3 बेटे हो गए थे। फिर उनके देवर नौकरी के लिए सऊदीया चले गए और देवरानी हैदराबाद अपने मैके चली गई। वहीं जाकर वो उम्मीद से हुई। फिर पता चला कि उसका बेटा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि 7 साल तक ना देवरानी का कराची आना हुआ, ना ही मेरी सास हैदराबाद गईं। ये सुनकर मेरे रहे सहे औसान भी खता होने लगे। हमारा भाई भी तो हैदराबाद में ही खोया था। फिर मेरी सास कहने लगी कि जैसे ही मेरा देवर 8 साल बाद सऊदीया से लौटा तो बीवी बच्चे को भी सऊदीया ले गया। मेरी सास ने पहली बार अरसलान को तभी देखा था जब वो सऊदीया जाने से पहले कराची आए थे। तब उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे चोट आई थी। वो बस गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता था। तब तो उसे अपनी माँ की भी पहचान भूल गई थी। हर बात सुनकर मुझे अंदर से ये उकसा रही थी कि हो ना हो मेरे भाई को इस चची ने ही अगवा करके उसे अपना बेटा बनाया है और उसकी पिछली याददाश्त भी ख़त्म करवा दी है। न जाने कैसे कैसे जहनी अटैक मेरे भाई के सर पर करवाए गए होंगे। उसे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरे भाई की गर्दन से ज़रा नीचे एक पैदाइशी निशान था जो स्याह रंग का था। अरसलान की गर्दन पर भी वो निशान मैं देख चुकी थी। अरसलान को वो सब पसंद था जो मेरे भाई को पसंद था। अभी तो मैं इन्हीं बातों के ताने बाने बुन रही थी जब एक और धमाका खेज खबर ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी। जब मेरी चची सास ने शफ़क़ का रिश्ता अरसलान के लिए मांगा, मैं तो गुमसुम उनकी शक्ल देखती रह गई। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि शफ़क़ की बात कहीं तय है। जब तक मुझे ये इल्म ना था कि अरसलान कौन है, मैं कैसे शफ़क़ के लिए कोई हतमी फ़ैसला कर सकती थी। मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने शफ़क़ को वापस जाने के लिए कह दिया। वो कुछ उदास सी हो गई थी। कहने लगी, अपिया आपने रिश्ते से झूठ बोलकर इनकार क्यों किया? मेरा तो कहीं भी पहले रिश्ता तय नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझसे बहस ना करो और जाओ यहाँ से। अब मैं ठीक हूँ और अपना घर संभाल सकती हूँ। अगर तुम्हारे जहन में अरसलान को लेकर कुछ जज्बात हैं तो बेहतर है कि तुम उन्हें ख़त्म कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी शादी अरसलान से होने नहीं दूंगी। मेरे सख्त लहजे के सामने वो कुछ ना बोली और वापस चली गई। लेकिन अगले रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी जब अरसलान मेरे पास आ गया। कहने लगा, आपा आपने इनकार क्यों किया? मैं शफ़क़ को बहुत चाहने लगा हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ। मुझ में ऐसा कौन सा ऐब देख लिया आपने जो आपने इनकार कर दिया है? मुझे बताएं। आपने तो मुझे हमेशा अपने भाई की तरह समझा है और मैं भी आपको अपने आपा समझता हूँ। मुझे तो लगा आप ये खबर सुनकर खुश हो जाएंगी, हमारी मदद करेंगी। अब मैं उसके सवाल का क्या जवाब देती? मैंने उसे साफ इससे कह दिया कि मैं तुम्हारे बारे में मशकूक हूँ। तुम चची के सगे बेटे नहीं लगते। ना जाने तुम कौन हो कौन नहीं, किस ख़ानदान से हो। मैं कैसे तुम्हें अपनी सगी बहन दे दूँ? जाकर पहले आईने में देखो, तुम कहाँ से चचा चची की औलाद लगते हो। मैंने सख्त लहजा ही अपनाते हुए अरसलान से कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि चची किचन से बाहर खड़ी मेरी बात सुन रही होंगी। वो अंदर चली आई और कहने लगी, तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता नहीं देना तो बेशक मत दो, लेकिन तुम मेरे बेटे को क्यों बदजन कर रही हो? अरसलान मेरी सगी औलाद है। मैंने कहा, फिर अरसलान को अपना बचपन क्यों याद नहीं है? आपने झूठ बोला है, यह आपका सगा बेटा है ही नहीं। मैं कब से जब्त कर रही थी, लेकिन सब जब्त करना मेरे बस की बात नहीं रही थी, इसलिए मैं चिल्ला कर बोल रही थी। घर के दूसरे अफराद भी जमा हो गए। सहन में इस बात को लेकर तमाशा सा लग गया था। मैंने कहा कि चची ने अरसलान को हैदराबाद में अगवा किया था। ये मेरा सगा भाई है। मेरी बात सुनकर चची रोने लगी। कहने लगी, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? ये मेरा ही बेटा है। मैंने कहा, कहाँ से आपका बेटा लगता है? किसी भी अजनबी से पूछ लें, कोई नहीं मानेगा कि यह आपका बेटा है। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई अरसलान के साथ देख ले तो सब इसे मेरा भाई समझेंगे। मैंने कहा, अगर चची सच्ची हैं
तो अरसलान को क्यों अपना बचपन याद नहीं है? उन्होंने झूठ बोला है सबसे, और मेरे भाई को अगवा करके न जाने कौन से बिजली के झटके उसके जहन पर लगवाए हैं कि उसे अपनी पिछली जिंदगी भूल गई है। मैंने सारी निशानियां बताई तो सब लोग चुप हो गए। अरसलान भी गुमसुम खड़ा था। मैंने कहा, अगर ये वाकई मेरा छोटा भाई अरसलान है तो मैं कैसे इसके साथ अपनी बहन का रिश्ता कर सकती हूँ? अब सबकी मशकूक नज़रें चची पर थीं। मेरे शौहर ने कहा कि हम अरसलान का DNA करवाएंगे, लेकिन ये बात सुनते ही चची गुस्से में आ गई। कहने लगी, नहीं, ये मेरा बेटा है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया है, मैं इसे वापस सऊदीया ले जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो अरसलान के साथ लग गई। उनकी अजीब सी हरकतें सबकी नज़रों में उन्हें और भी मशकूक बना गई थीं। अरसलान ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन अगले चंद रोज़ बाद ही एक DNA की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी थी। अरसलान चची का बेटा नहीं था। मेरे वालिद की रिपोर्ट भी मेरे शौहर ने ली थी। वो मेरा ही अरसलान था, मेरा भाई। मेरा दिल उसे देखकर झूठी गवाही नहीं दे रहा था। वहाँ इस वक्त मेरे घर वाले भी मौजूद थे। हम सब माँ बाप और बहनों की नज़रें अरसलान पर थीं। 15 साल बाद हमारा भाई हमारे सामने था। हम सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो तो वो भी रहा था। सबसे पहले वो मेरी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ का ये हाल था कि वो दीवाना वार अरसलान को प्यार कर रही थी। कभी सीने से बींच लेती, कभी चूमने लगती। वो हिचकियों से रो रही थी। मेरे वालिद की आंखों से बतदरीज आंसू बह रहे थे। अरसलान सबसे मिला, फिर शफक के पास खड़ा हो गया। कहने लगा, अल्लाह ने कोई नेकी हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। अगर ये हकीकत बाद में खुलती तो हम शायद एक दूसरे से नजरें भी ना मिला पाते। शफक भी आंसू बहा रही थी। उसने शफक के सर पर हाथ रखा, फिर मेरे पास आया। कहने लगा, आपा, मैं आपका एहसान तो कभी नहीं भुला सकता। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी। वो मुझे चुप कराने लगा। चची नजरें झुकाए बैठी थी। चचा ने बड़े सख्त लहजे से उन्हें कहा कि वो सच बताएं। कहने लगी कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ उनकी बहन भी रहती थी। वो अक्सर उनसे मिलने आती थी। वो सच में उम्मीद से हुई थी और उनका बेटा भी हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र का होकर वो इंतकाल कर गया था। लेकिन ये बात उन्होंने सबसे छुपा ली। अपने मैके वालों से भी यही कहा कि ये बात उनके शौहर और ससुराल वालों को पता ना चले, क्योंकि चचा उन्हें सऊदीया जाने से पहले कह चुके थे कि अगर उन्हें औलाद ना हुई तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। और अब वो फिर से बे औलाद हो गई थीं। गली में उनका बेटा अरसलान के साथ अक्सर खेलता था। जब भी वो अपने बहन से मिलने आती, अरसलान को देखती थीं। जब बेटा उनके पास नहीं रहा तो उन्होंने खुद गर्जी दिखाते हुए अरसलान पर नज़र रखना शुरू कर दी। और 7 साल का जब अरसलान हो गया तो वो अरसलान की नज़रों में अजनबी नहीं रही थी। वो कुछ ना कुछ अरसलान को खिलाती पिलाती रहती थी। इसीलिए जब उनके शौहर ने वापस पाकिस्तान आने का कहा तो वह अरसलान को बहला कर ले गई। फिर इलेक्ट्रिक शॉट लगवा कर उसकी पिछली सारी ज़िंदगी उसके जहन से महव करवा दी और उसको यही कहा कि वो उसकी माँ है। लेकिन अल्लाह के कानून में जुल्म के अंजाम दुनिया में ही नज़र आने लगते हैं। सच ही कहा है कि सच कभी नहीं छुपता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा